السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمی۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ شہر میں امریکی ایمبیسی سے متصل سڑک کو ڈونلڈ ٹرمپ ایونیو کا نام دیا جائے گا۔ 23 مئی کو حکومت کر سکتی ہے اعلان، شہر کی عالمی پہچان مزید مضبوط۔ تلنگانہ میں موسلادھار بارشوں کا الرٹ، 19 جون سے مانسون مزید سرگرم، کئی اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی، حکومت نے جاری کیا ہائی الرٹ جاری، عوام کو احتیاط کی ہدایت۔ مونسون کی تیاریوں پر اعلیٰ سطحی کا ہنگامی اجلاس، حکومت کے مشیر سدرشن ریڈی نے صدارت کی، DGP، کمشنر ہائیڈرا و دیگر کی شرکت، مونسون کی تیاریوں کا جائزہ۔ محرم میں انتظامات تیز، یاقوت پورہ میں تیاریوں کا جائزہ، شامیانوں اور سہولتوں کا کام جاری، عزاداروں کو بہتر سہولتیں فراہم ہوں گی، تمام کام وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ تلنگانہ آفیسر کے گھر ACB کا چھاپا، سونا و چاندی سمیت کروڑوں کی نقدی برآمد، ڈپٹی ڈائریکٹر کمشنر آف سروے سیٹلمنٹس اینڈ لینڈ ریکارڈ کے گھر اور دفتر پر دھاوے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اب شہر حیدرآباد میں بھی ایک سڑک کا نام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر رکھا جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ شہر میں واقع امریکی سفارت خانے سے متصل سڑک کو اب ڈونلڈ ٹرمپ ایونیو کا نام دیا جائے گا۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے نئے نام کے سلسلے میں 23 جون کو اعلان کیا جا سکتا ہے۔ حکومت امریکہ کے یوم آزادی تقاریب سے قبل یہ اعلان کر سکتی ہے۔ یہ تقاریب 23 جون کو ہونے والی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یوم آزادی تقاریب میں چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کے علاوہ ہندوستان میں امریکی سفیر مسٹر سرجیو گور، کئی سفارتکار، سینئر عہدیدار اور صنعتی نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ شہر کے صابر آباد حدود میں واقع امریکی قونصل خانے سے متصل سڑک کو ڈونلڈ ٹرمپ ایونیو کا نام دیا جائے گا اور یہ شہر اب ایک اہم سنگ میل کی شناخت حاصل کر پائے گا۔ کہا گیا ہے کہ عالمی شخصیتوں کو اعزاز بخشنے ریاستی حکومت کے وژن کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں آئندہ چند دنوں کے دوران مانسون مزید سرگرم ہونے جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات نے 19 جون سے ریاست کے بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارشوں کی پیش قیاسی کرتے ہوئے عوام اور متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ موسمی ماہرین کے مطابق خلیج بنگال میں بننے والے کم دباؤ کے اثرات اور جنوبی مغرب مانسون کی مضبوطی کے باعث حیدرآباد سمیت شمالی اور وسطی تلنگانہ میں بارشوں کی شدت میں اضافہ متوقع ہے۔ متوقع موسلادھار بارشوں کے پیش نظر ریاستی حکومت نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریونیو مشنری کو مکمل الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ریاستی وزیر ریونیو واز ڈیزاسٹر مینجمنٹ پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے اعلان کیا ہے اور عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے واضح کیا کہ قدرتی آفت کے بعد راحتی اقدامات سے زیادہ اہم ان کے اثرات کو پیشگی منصوبہ بندی کے ذریعے روکا جانا چاہیے۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہدایت کے مطابق ریاست سے لے کر گاؤں کی سطح تک تمام متعلقہ محکموں کو ہائی الرٹ رہنے، نشیبی علاقوں کی مسلسل نگرانی کرنے، ہنگامی امدادی ٹیموں کو تیار رہنے اور عوامی جان و مال کے تحفظ کے لیے فوری احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر نے بتایا کہ جنوب مغرب مانسون 8 جون کو جنوبی تلنگانہ میں داخل ہوا تھا اور آئندہ 3 تا 4 دنوں میں پوری ریاست کا احاطہ کرے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق 19 جون سے بارشوں کی شدت میں نمایاں اضافہ ہوگا، جو تقریباً ایک ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ حکومت نے تمام ضلع کلکٹرز، ریونیو، پولیس، پنچایت راج، بلدیاتی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام کو چوکس رہنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ موسمی انتباہات پر عمل کریں اور بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ہائیڈرا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی جانب سے تالابوں اور جھیلوں کی اراضیات کو قبضوں سے پاک کرنے اور تالابوں و جھیلوں کو بحال کرنے کے جو اقدامات کیے گئے تھے، ان کے اب مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ہائیڈرا نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے بتکما کنٹا، تمبیڈی کنٹا اور کوکٹ پلی نلا چیرو کو ہائیڈرا کی جانب سے بحال کرنے کے جو اقدامات کیے گئے تھے وہ ثمر آور ثابت ہو رہے ہیں۔ ہائیڈرا نے کہا کہ جھیلوں اور تالابوں کے تحفظ اور ناجائز قبضہ جات کی برخاستگی کے نتیجے میں بارش اور سیلاب کا پانی اب ان کنٹوں اور جھیلوں تک پہنچ رہا ہے۔
इसके नतीजे में तालाबों और झीलों के अतराफ की इस आसपास की जो बस्तियां हैं वो महफूज हो गई हैं और इनमें बारिश व सैलाब का पानी जमा नहीं हो रहा है। हाइड्रा ने दावा किया कि तालाबों की बहाली के जरिए सैलाब को रोकने और बस्तियों को महफूज करने के इक़दाम किए गए हैं और इसके अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। वज़ीर सेहत मिस्टर दामोदर नरसिम्हा ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों को मानसून सीजन में होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि दवाखानों में अद्वियात का ज़ख़ीरा रखा जाना चाहिए, मरीजों के मुआयने की सहूलत फराहम की जानी चाहिए और दरकार अमले को भी दस्तयाब रखा जाना चाहिए। दामोदर नरसिम्हा ने आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनाक़द करते हुए सरकारी दवाखानों में मानसून सीजन की तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ीर सेहत ने कहा कि सेहत आमा पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए, मच्छरों की अफजाइश और कंट्रोल किया जाना चाहिए और बैन महकमाजाती राब्तों और ताउन में इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसमी अमराज और बीमारियों से निपटने के लिए तेज रफ्तार इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि इनके ज़्यादा फैलने के अंदेशों को ख़त्म किया जा सके। इजलास में महकमे सेहत के आला अहदेदारों ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ से भी वज़ीर सेहत को वाकिफ़ करवाया। वज़ीर सेहत ने अवामी सेहत की बरकरारी में हुकूमत से हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। मानसून की तैयारियों का जायजा लेने एक हंगामी इजलास आज मलकमपेट में हुकूमत के मुशीर मिस्टर सुदर्शन रेड्डी की सदारत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक मुनाक़द हुआ। इस इजलास में मानसून की तैयारियों और बारिश के दौरान सैलाब की सूरत हाल से निपटने के इक़दाम और ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने पर गौर किया गया। इजलास में डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद, हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ के अलावा साइबराबाद पुलिस अहदेदारों, महकमे अपाशी के अहदेदारों के अलावा दीगर महकमाजात के हुक्काम ने भी शिरकत की। DGP मिस्टर CV आनंद ने बताया कि तेलंगाना पुलिस मानसून के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने तैयार है। पुलिस की टीमें 24 घंटे निशिबी इलाकों पर नजर रखे हुए हैं, पानी जमा हो जाने वाले मुकामात की निगरानी करेंगी और बड़े ट्रैफिक जंक्शंस पर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा आवाम की सहूलत के लिए बर वक्त पब्लिक एडवाइजरी जारी की जाएगी। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि तमाम महकमेजात में करीबी ताउन किया जाना चाहिए ताकि मौसर ढंग से सूरत हाल से निपटा जा सके और इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदारी पूरी की जा सके। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के जरिए अवामी हुकूमत को अवाम के करीब करने में मदद मिली है। इस प्रोग्राम का 16 मार्च से 12 जून तक इनेकाद अमल में लाया गया था। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटेरिएट में एक जायज़ा इजलास मुनाक़द करते हुए इस 99 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान की गई सरगर्मियों का जायज़ा लिया। चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ महकमाजात की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम और इनके नताइज पर भी गौर किया। इजलास में रुकने राज्यसभा V नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव, DGP CV आनंद और मुख्तलिफ महकमेजात के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने 99 रोज़ा एक्शन प्लान में सरगर्मी से हिस्सा लेने वाले महकमाजात की सताइश की। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वह इन अहदेदारों और जिले कलेक्टर्स के ताल्लुक से हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें जो ऐसे प्रोग्राम्स मुनाक़द नहीं कर पाए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ महकमाजात को हिदायत दी है कि वो इस प्रोग्राम के दौरान अवाम और अवामी नुमाइंदों के जो राय रही है इसको रिकॉर्ड करें और गाँव में जो मसाइल उठाए गए हैं इनको हल करने पर तवज्जो दी जानी चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला व जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान वो कहां थे और रियासती जदोजहद में इनका क्या किरदार रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील लाखों और अवाम की कुर्बानियों और तवील अवामी तहरीक का नतीजा है, इसलिए इस हसास मौजू पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे मुनासिब नहीं है। महेश कुमार गौड़ ने तंजिया अंदाज में कहा कि जब तेलंगाना के अवाम अलहदा रियासत के लिए सड़कों पर जद्दोजहद कर रहे थे, इस वक्त पवन कल्याण फिल्मों में मसरूफ थे। उन्होंने मजीद कहा कि पवन कल्याण को अभी सियासत में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और अगर वो अवामी मसाइल और तारीखी हक़ाइक़ को बेहतर अंदाज में समझें तो ये इनके लिए और सियासी निज़ाम के लिए बेहतर होगा। कांग्रेस
قائد نے واضح کیا کہ تلنگانہ کی عوام اپنی تاریخ، شناخت اور ریاستی حقوق کے معاملے میں کسی بھی قسم کی غیر ضروری مداخلت یا غیر سنجیدہ تبصروں کو قبول نہیں کریں گے. ఎక్కడున్నారు తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ సినిమాలో నటిస్తూ ఉన్నాడు? ఎక్కడున్నాడు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచినప్పుడు? వారు తెలంగాణ గురించి మాట్లాడడం ఏంటి? స్టార్ డమ్ ఉందని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే మంచిది కాదు. మీరు సినిమాల్లో ప్రజాదరణ పొందిన నాయకుడు, కథానాయకుడు, కానీ రాజకీయాలు ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంది. నేర్చుకుంటే మంచిది. शहर में अब बोनाल त्योहार की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है. सिकंदराबाद अजैनी महाकाली मंदिर के एक वफद ने रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए बोनाल त्योहार के शेड्यूल से वाकिफ करवाया. जो शेड्यूल तैयार किया गया है इसके मुताबिक असल बोनाल त्योहार 2 अगस्त इतवार को मनाया जाएगा. इससे कबल 19 जुलाई इतवार को गट्टू उत्सवम का एहतमाम किया जाएगा. 2 अगस्त को असल बोनाल त्योहार होगा, जबकि 3 अगस्त को रंगम प्रोग्राम मुनाकात किया जाएगा. इसी दिन सुबह 10:30 बजे जुलूस निकाला जाएगा. रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर ने इस मौके पर मंदिर के वफद को तयक्कुन दिया कि चूंकि इस त्योहार में पड़ोसी रियासतों से भी भक्तों की आमद होती है, इसलिए हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हुकूमत भक्तों की आमदरफ्त के लिए भी ज़रूरी इक़दाम को यकीनी बनाएगी. पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द एक जायज़ इजलास मुनक़्क़द करते हुए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत देगी और इन तक़ारीब के इनेक़ाद में मुकम्मल ताउन किया जाएगा. साइबराबाद के हुदूद में अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए हर दिन एक वार्ड मुहिम शुरू की गई है. इस मुहिम के तौर पर कमिश्नर साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जोनल कमिश्नरान और डिप्टी कमिश्नरान के अलावा दिगर अहदेदारों के साथ अवाम से मुलाकात की. गाजुला रामाराम सर्कल के महादेवपुरम में कम्युनिटी नुमाइंदों के मुलाकात करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की गई और इन्हें दूर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम की हिदायत दी गई. कमिश्नर साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुकामी बल्दियाती और दिगर मसाइल और तरक्याती इक़दाम की ज़रूरत का जायज़ा लिया. इस मुलाकात और बातचीत के दौरान कैलाश हिल्स, महादेवपुरम, यंदामूरी लेआउट, PNRO, प्रगाडोल्स कॉलोनी, रवि नारायण रेड्डी नगर, खसी नगर और करीबी बस्तियों के अवाम ने कई मसाइल पेश किए. बुनियादी ज़रूरियात और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक़ अमूर पर तवज्जो दिलाई गई. उन्होंने सड़कों की हालत को बेहतर बनाने और पार्क्स को असरी बनाने की तजावीज़ भी पेश की. अवाम ने बारिश के पानी को जमा होने से रोकने के इक़दाम पर भी जोर दिया. अहदेदारों ने अवामी शिकायत की जल्द यकसुई का तयक्कुन दिया. रियासत में तालीमी सरगर्मियों के आगाज़ और स्कूल्स की दोबारा कुशादगी के बाद महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से तालीमी इदारों से मुताल्लिक़ रखने वाले स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है. जिन बसों की फिटनेस दुरुस्त नहीं पाई गई और जिन बसों में सेफ्टी इक़दाम का ख्याल नहीं रखा गया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने पहले ही अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई करें और इनकी फिटनेस की जाँच की जाए. कहा गया है कि महकमे ट्रांसपोर्ट के हुक्काम की जानिब से जुमला 245 बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और मुकदमा दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा जुमला 60 बसों को भी जब्त कर लिया गया है. इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे और जिन बसों में तलबा की सेफ्टी के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए थे, इसके अलावा कई और खिलाफ वर्जियाँ भी पाई गई जिन पर यह कार्रवाई की गई. माह मुहर्रम की आमद के पेश नज़र याखुतपुरा हल्के में आज़ादारों की सहूलत के लिए जारी शामियानों और दीगर इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया. मुहर्रम के इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल करने के इक़दाम तेज़ कर दिए गए हैं. याखुतपुरा रुकने असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज की निगरानी और मजलिस के रुकने क़ानूनसाज़ कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफांदी की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ मकामात पर शेल्टर्स और बुनियादी सहूलतों की तनसीब का काम जारी है. इस मौके पर मजलिस के कायदीन, कारकुनान और मुकामी ज़िम्मेदारान ने इंतज़ामियात का मुआयना करते हुए मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम काम मुहर्रमुल हराम से क़ब्ल मुकम्मल किए जाएँ ताकि आज़ादारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े. मजलिस कायदीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुहर्रम के दौरान बेहतरीन सहूलतों, नज़्म ज़ब्त और अवामी खदमात को यकीनी बनाया जाएगा. कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट व सदर मोहतरम की नुमाइंदगियों पर
और आली जनाब हबीब मिलत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़ेर निगरानी अय्याम अज़ा के कामों का आगाज़ आज किया जा रहा है, क्योंकि कल 29 ज़िलहिज्जा के दिन शहर हैदराबाद में अय्याम अज़ा के सेहरे मुबारक बरामद होते हैं और तमाम आशुर खाने जात में अलम मुबारक की इस्तादगी अमल में आती है। तो आज से ही टेम्पररी लाइट्स का काम आगाज़ किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल शाम तक तमाम इम्पॉर्टेंट मकामात पर लाइट लगवा दी जाएगी और दीगर जहाँ जहाँ पर भी कंप्लेंट्स आएंगे, जहाँ जहाँ से भी बताया जाएगा कि लाइटों की ज़रूरत है, तमाम मजलिस के रुकन इन कामों को अंजाम देने के लिए हमेशा जो है बर वक्त काम के साथ इन कामों को अंजाम देंगे। और इस मौके पर आज इलेक्ट्रिसिटी के GHMC से जो नुमाइंदगी की गई है उसके ज़मन में जो है तमाम यहाँ पे टेम्पररी लाइट्स आ गए हैं। अब यहाँ से इंशाअल्लाह ताला अलावा सरतौक़ मुबारक से इसका आगाज़ अमल में आएगा। इस मौके पर तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान मेरे साथ हमरा रहे और हम अब काम का आगाज़ कर रहे हैं। शुक्रिया। माह मुहर्रम अल हराम के पेश नज़र चार मीनार जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस खीरन खारे प्रभाकर IPS ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों और हसास इलाकों का रात के औकात में तफसीली मुआयना करते हुए सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियों का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक सड़क हादसे से मुतासरा खानदान से मुलाकात करके वाक़े की तफसीलात मालूम की, जबकि मलकपेट पुलिस स्टेशन में रात की ड्यूटी पर मामूर पुलिस अमले की तैनाती और जिम्मेदारियों का जायजा लिया। बाद अज़ा उन्होंने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन का मुआयना किया और ओल्ड चारमीनार बस डिपो, मुगलपुरा फायर स्टेशन, पंजशाह इलाका और नूर खान बाजार में फुट पेट्रोलिंग करते हुए मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक नज़्म व नस्क और अवामी सहूलतों के इंतजामात का मुशाहिदा किया। DGP ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि अज़ादारों की सहूलत और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। इस मौके पर उन्होंने एक मेडिकल हॉल का भी मुआयना किया और इसके लाइसेंस व दीगर दस्तावेज़ात की जाँच करते हुए कानूनी तकाज़ों पर अमल आवारी का जायजा लिया। ऐसे चलो। हैदराबाद के दारुस्सलाम में मुनाक़दा एक तकरीब के दौरान AIMIM के नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 315 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में मजमूई तौर पर 3,15,36,540 रुपये मालियत के चेक तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात गरीब और मुतवासित तबके के ख़ानदानों के लिए बड़ी माविन साबित हो रही हैं और इनके ज़रिए मुस्तहिक़ अफराद को बराह रास्त माली इमदाद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमात ज़रूरतमंद ख़ानदानों के माशी बोझ को कम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। तकरीब में नामपली हल्के के साबिक़ कॉरपोरेटर्स, आसिफ नगर मंडल के अहदेदारान, पार्टी कायदीन और मुस्तफ़ीदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने स्कीम के फ़वाइद पर इत्मीनान का इजहार किया और अवामी हुकूमत और नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नामपली हल्के में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकज़ी दफ्तर दारुस्सलाम पर यहाँ से तकसीम किए गए। यहाँ पर कुल 727 चेक्स यहाँ पे तकसीम किए गए, जिसमें आसिफ नगर मंडल के 702 चेक्स और नामपली मंडल के 25 चेक यहाँ पे तकसीम किए गए, जिसकी कुल लागत 60,27,84,332 रुपये के रकमिया अमाउंट के चेक्स यहाँ पे तकसीम किए गए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर और कंटिन्यूस फॉलोअप पर ये चेक्स रिलीज़ हुए थे, जो यहाँ मरकज़ी दफ्तर से आज तो आवाम के बीच में तकसीम किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रहते हुए उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनको सहूलत पहुँचाने की सदर मजलिस की निगरानी में पुरजोर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सरकारी महकमाजात और अहदेदारों में बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखते हुए महकमे अंसदाद रिश्वत सतानी ब्यूरो की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ सर्वे सेटलमेंट्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स S.
प्रहरी के दफ्तर में इनके चंबर पर धावा किया गया और हैदराबाद और अतराफ के जुमला 12 मुकामात पर भी धावे करते हुए तलाशियां ली गई। इन पर अपनी आमदनी से ज़ायद आसा जमा कर लेने के इल्ज़ामात है। छतरी नाका में वाक़ इनके ख़यामगाह और नारायणगुड़ा में इनके दफ्तर पर भी धावे किए गए। एसीबी के डीएसपी जी श्रीधर की क़ियादत में ये धावे किए गए। ज़राए का कहना है कि इन धावों में काफ़ी भारी रकम नकद, जायदाद के दस्तावेज़ात और दीगर असाजात की ज़ब्ती भी अमल में लाई गई है। भारी नकद रकम की गिनती का सिलसिला भी जारी है। ज़राए का कहना है कि धावों का सिलसिला तवील भी हो सकता है और क्योंकि कई दस्तावेज़ात की जांच की जा रही है और नकद रकूमात भी जब्त की गई हैं जिनकी गिनती की जा रही है। हैदराबाद के इलाके मलकपेट जजेस कॉलोनी में राब्ता फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम राब्ता मेट्रो क्यूर हॉस्पिटल की शानदार इफ्तिताई तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबे हयात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में AIMIM के सीनियर कायद मोहम्मद रहमतुल्लाह तैयब भी शरीक हुए और हॉस्पिटल इंतज़ामिया की खिदमात को सराहते हुए कहा कि मियारी और सस्ती तिब्बी सहूलतों की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अहमद अली ने बताया कि राब्ता मेट्रो क्यूर हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, ENT, जनरल और प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स व स्पाइन, पेन मैनेजमेंट समेत मुतअद्दिद जदीद तिब्बी शोबे कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे डेंटल खिदमात, प्लास्टिक सर्जरी, स्पाइन और ऑर्थोपेडिक इलाज समेत तमाम सहूलियात जदीद टेक्नोलॉजी और माहिर डॉक्टरों की निगरानी में इंतहाई मुनासिब और काबिल बर्दाश्त अखराजात पर फराहम की जाएंगी ताकि आम और मुतवासित तबके में मयारी इलाज से मुस्तफ़ीद हो सके। हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने इस अज़्म का इज़हार किया कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी खिदमात, जदीद इलाज और इंसान दोस्ती के जज्बे के साथ सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मेरा सलाम, मैं सोबिया जुवेरिया राब्ता फाउंडेशन की जानिब से आप सभी के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मलकपेट के रीजन में मेट्रो क्यूर हॉस्पिटल को राब्ता फाउंडेशन के साथ जो है एसोसिएशन किया गया है। राब्ता फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से जो है काफ़ी सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे थे। हमारा मेन फोकस हुआ करता था हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों ने 15,000 से ज़ायद पेशेंट्स को जो है सर्व किया है और उनके करीबन 6,000 से ज़ायद पेशेंट्स के फैमिलीज़ को सर्व किया है। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक और पड़ाव पार किया है। मेट्रो क्यूर हॉस्पिटल जो मलकपेट में मौजूद है, आज हम लोगों ने करीब 8 डिपार्टमेंट्स का आगाज़ किया है, जिसमें हमारा ये फोकस है कि हम आवाम के लिए पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली या आप कह सकते हैं कि एक नेबरहुड हॉस्पिटल हम लोग लेकर आए हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है 21, 20 और 21 तारीख को हम लोग एक बहुत बड़ा कैंप, मेगा हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें जो है जनरल मेडिसिन और गायनोकोलॉजी और ऑर्थोपेडिक सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, आप जितना हो सकता है इससे कैंप से और हमारे सर्विसेज से इस्तेफादा हासिल करिए। थैंक यू सो मच। इसमें जो 500 जो लिखा हुआ है उसका क्या है? हम लोगों ने एक कूपन लॉन्च किया है जो सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करेगा, जिसमें जो है एक 500 का कंसल्टेशन फ्री कूपन है। जनरली आप जब डॉक्टर से मिलते हो कंसल्टेशन चार्जेस जो होते हैं अमूमन वो 200-300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये या जो भी होता है उसका बजट। तो एक हम लोगों ने रिलीज़ किया है कूपन, फ्री कूपन, जो कि वैलिड रहेगा 15 जुलाई तक। अगर कोई जो है अगर ये कैंप अटेंड नहीं कर पाए तो आप वो वाउचर के साथ आप आकर जो है सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सिकंदराबाद के गोपालपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक लॉज पर छापा मारकर 17 किलोग्राम गांजे के अलावा 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक नाबालिग को भी तहवील में लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक रियासत बिहार से है और वो गांजे की स्मगलिंग में मुलविस थे। जब्त शुदा मंशियात की मुंतकिली उड़ीसा के संभलपुर से हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र ले जाने की मंसूबाबंदी की गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस बेन रियासती मंशियात नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद की तलाश शुरू कर दी है। आला पुलिस हुकाम ने इस कामयाब कार्रवाई में शामिल टीम की सताइश करते हुए वाज़ेह किया कि मंशियात के कारोबार में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
అతనితో పాటు ఒక జూనైల్ ఉన్నాడు, అతని పేరు మేము డిస్క్లోజ్ చేయలేము. అయితే వాళ్ళ బ్యాగ్స్ సూట్ కేస్ చెక్ చేస్తే టోటల్ ఒక 17 kgs వరకు ఈ నిషేధిత గాంజా దొరికింది. ఇమీడియట్గా మేము మా టీం అక్కడికి వెళ్ళి అకార్డింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారం చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ రిషికుమార్ ఎవరైతే ఉన్నాడో మనకు కనిపించాయన బీహార్లో విజయ్ అని ఉంటాడు. అతను అక్కడ ఒరిస్సా సంబాల్పూర్ నుంచి గాంజా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి పూణేలో ఒక కస్టమర్కు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. ఈ నాగవల్లి ఎక్స్ప్రెస్లో మొన్న ఎక్కి నిన్న మధ్యాహ్నం 11 o'clock మన హైదరాబాద్కి వచ్చి దేవకి లాడ్జ్లో షెల్టర్ తీసుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ అవర్స్లో పూణేకి వెళ్ళి అక్కడ కస్టమర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. అట్లా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినందుకు ఇతని ఛార్జ్ టోటల్ కస్టమర్కి రీచ్ అయితే 10,000 rupees ఒక కన్సైన్ అన్నట్టు. మీన్వైల్ మనం పట్టినాం కాబట్టి అది ఇంటర్సెప్ట్ అయిపోయింది. ఆ విజయ్ గురించి మనం ఏదైతే ఉన్నాడో వెస్ట్ బెంగాల్లో అతని గురించి అప్రెంటిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని అతను కూడా అప్రెంటిషన్ చేస్తాం. ఇదంతా సీజ్ చేసిన తర్వాత కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి అక్కడ నుంచి చేస్తాం. నుంచి హైదరాబాద్ టు పూణే ఎన్ని రోజుల నుంచి ఓన్లీ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి, కస్టమర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే 10,000 వస్తుంది. ఫస్ట్ టైం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం చేస్తాం. ఇది రేట్ మనకి ఇది డిపెండింగ్ ఆన్ ఏరియా బట్టి ఉంటుంది. ఎన్ని కిలోలు ఉంది సార్? 17 kgs. 17 kgs. मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट में गैर कानूनी हुक्का पार्लर्स के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाते हुए 14 हुक्का सेंटर्स और कैफेन का मुआयना किया, जिसके दौरान कवायद व ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुकदमा दर्ज किए गए और 7 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतअद्दिद हुक्का मराकज़ लाजमी इजाज़तनामों और लाइसेंस के बगैर चलाए जा रहे थे, जो अवामी सेहत और सलामती और क़ानून व निज़ाम के लिए संगीन खतरा बन रहे हैं। मलकाजगिरी पुलिस ने खबरदार किया है कि बगैर इजाज़त हुक्का मराकज़ चलाने वालों के खिलाफ आइंदा भी सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जिनमें फौजदारी मुकदमात का इंदिराज, सामान की जब्ती और क़ानूनी चाराजोई शामिल है। आदिलाबाद में बंद पड़ी सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री की बहाली का मुतालबे को लेकर सीसीआई सधाना कमेटी के ज़ेरे एहतमाम हेलो यूथ चलो सीसीआई इंडस्ट्री एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें साबिक़ वज़ीर जोगू रामन्ना, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर निकाली गई एहतजाजी रैली के बाद सीसीआई फैक्ट्री के मरकजी दरवाजे पर धरना दिया गया। साबिक़ वज़ीर जोगू रामन्ना ने के खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी उज़रा ने माजी में सीसीआई फैक्ट्री की बहाली के मुतअद्दिद वादे किए थे, ताहम अब इसी सनत को कबाड़ के तौर पर फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, जो अवाम के साथ धोखा है। उन्होंने मुकामी बीजेपी अवामी नुमाइंदों से इस मामले पर जवाब तलब करते हुए मुतालबा किया कि फैक्ट्री को फरोख्त करने के बजाय फौरी तौर पर दोबारा फाल बनाया जाए, ताकि ज़िले के हज़ारों नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर सकें और आदिलाबाद की सनती तरक्की को नई सिमत मिले। అసలు మీ వైఖరి ఏమిటి? అసలు ఈ సిమెంట్ పరిశ్రమను, ఈ స్క్రాపు, ఈ మిషనరీ టైం అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇది స్క్రాప్ పోయిన తర్వాత తిరిగి సిమెంట్ పరిశ్రమను ప్రారంభించరా? ఏం చేస్తారో మీడియా ద్వారా ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత మీకు ఓట్లేసిండ్రు కాబట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు, ఎంపీ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, ఇలా కేంద్రంలో మీ ప్రభుత్వం ఉంది, ఎందుకు నోరు విప్పుతలేవు? तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आदिलाबाद जिले अक़लियती कांग्रेस के चेयरमैन के तौर पर सैयद शाहिद अली की तकरीर पर कांग्रेस हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस जिले सदर दफ्तर में मुनक़दा इस्तक़बालिया तकरीब के दौरान कायदीन और कारकुनान ने शालपोशी और गुलपोशी के जरिए पुरतबाक खैर मक़दम किया। इस मौके पर सैयद शाहिद अली ने पार्टी क़ियादत खुसूसन टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, अक़लियती कांग्रेस के कौमी सदर इमरान प्रतापगढ़ी और रियासती कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अक़लियती बरादरी के मसाइल के हल, इनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और ज़िले में कांग्रेस पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वो जमात है जो अक़लियतों को हक़ीक़ी नुमाइंदगी फराहम करती है और वो तमाम तबक़ात को साथ लेकर अवामी खिदमात को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएंगी। शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, नेशनल प्रेसिडेंट चेयरमैन, और आदिलाबाद के हमारे डीसीसी नरेश यादव साहब का भी,
और एक्स-DCC साजिद खान साहब और हमारे सुजाता मैडम, जनरल सुजाता मैडम, एक्स मार्केट चेयरमैन संजू रेड्डी साहब और हमारे श्रीकांत रेड्डी साहब का और कंदी श्रीनाथ रेड्डी इंचार्ज, जो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करे। आज इस प्रेस मीट लगाने की वजह यह है कि माइनॉरिटियों को जो हक मिलना था, आज शुरुआत हुई। जैसा कि टाउन परतून तक टाउन कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारे फिजर पांचा साहब को दिए, वैसा ही मुझे आज माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चेयरमैन दिए और हम पार्टी के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें एक मौका मिला पार्टी के अंदर आगे बढ़ने का और काम करने का। यंग यूथ को मैं यूथ कांग्रेस से काम कर लेते आया हूँ, जो आज मुझे एक माइनॉरिटी चेयरमैन का अहदा दिए। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नरेश यादव साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मुझे काबिलियत समझे और मुझे एक मौका दिए पोस्ट का। और आगे इस पार्टी के माइनॉरिटी के जो भी मसले हैं, जो भी मसाइल हैं, उनको आगे लेके जाऊँगा, कामयाबी पे काम करूँगा और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं हमारे कार्यकर्ता, तमाम जो सीनियर हैं, तो तमाम लोग मेरे से मोहब्बत खुलूसी में रहते हैं और उनके साथ मिलकर उनके साथ ख़त्म से ख़त्म मिलाकर आगे पार्टी को काम करके और पार्टी का एक आने वाले दिनों में जो हुकूमत जो हमारे तेलंगाना में जो आज हमारे सीएम साहब जो आज हुकूमत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग पूरे मेहनत करके आदिलाबाद ज़िले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में MLAs को जिता के लाएंगे इंशाअल्लाह। सबके साथ मिलकर एक झूठ बनकर ताकत बनकर काम करेंगे। वैसे बेटर इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर में अमरीकी एम्बेसी से मुत्तासिल सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू का नाम दिया जाएगा। 23 मई को हुकूमत कर सकती है ऐलान, शहर की आलमी पहचान मजीद मजबूत। तेलंगाना में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट, 19 जून से मानसून मजीद सरगर्म, कई अजला में शदीद बारिश की पेशगोई, हुकूमत ने जारी किया हाई अलर्ट जारी, अवाम को एहतियात की हिदायत। मॉनसून की तैयारियों पर आला सतही का हंगामी इजलास, हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने सदारत की, डीजीपी, कमिश्नर हाइड्रा व दीगर की शिरकत, मॉनसून की तैयारियों का जायजा। मुहर्रम में इंतजामात तेज, याकुतपुरा में तैयारियों का जायजा, शामियानों और सहूलतों का काम जारी, आज़ादारों को बेहतर सहूलतें फराहम होंगी, तमाम काम वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। तेलंगाना ऑफिसर के घर एसीबी का छापा, सोना व चांदी समेत करोड़ों की नकदी बरामद, डिप्टी डायरेक्टर कमिश्नर ऑफ सर्वे सेटलमेंट्स एंड लैंड रिकॉर्ड के घर और दफ्तर पर धावे। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।